हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्जाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट हियर। Which value do the national park of our countries promote? There is important question here. Which value do the national park of our countries promote? Our national park promote the value given to below. The first here, they promote the rebuildings of our forest wealth, as the forest cover in the India is just over 20%. Is a very sadness is here is a speech. There is a 20% only forest cover in India, whereas there should be about a 33% for balancing their ecosystem. The first point is the most important here. The promote the rebuildings of our forest belt, as the forest cover is India as just over 20%, and whereas should be about a 33% for balancing there is a ecosystem. And second point is important here. The promote to the safety of animals, which is required for many species which are in danger. If this is a species become extinct, their ecosystem will be unbalanced, leading to be more problem in the future. They promote the safety of animals, which is required for many species which are endangered. If their species become extinct, their ecosystem will be unbalanced, leading to the more problem in the future. And the next point, third here, they promote the utilizations of the herbs and plants as a occupation for the tribes and the local communities living around their area where the national park are localized. The method of making this is a traditional medicine should not be a loss for the world, as such a medicine are free from the side effect which are causing with antibiotics. You know that there is a most important point here. They promote the utilization of the herbs and plant as a occupation for their travels as a local communities living in or around their area where their national park are localized. The method of making this traditional medicine should not be a loss to the world, as such a medicine are free from the side effects which are caused by the antibiotics. And next point is the fourth here is important. Revealing their ecosystems is important value which will be make their world a better place to live in for a future generation. Revealing their ecosystems in an important value which will make their world a better place to live in for a future generation. अगला जो 11वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बहुत साधारण है कि हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान किन मूल्य को बढ़ावा देता है, यानी हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं उसका जो है किस मूल्य के ऊपर बढ़ावा दिया है, क्यों ज़रूरी है और किसका ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, सेंचुरी पार्क बनाए गए हैं, आखिर ये किस लिए बनाए गए और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जीव जंतुओं को। अब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है। हमने उद्यानों के बारे में जाना कि यहाँ पर कितने 89 जो है बनाए गए हैं, नेशनल पार्क सब हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि नेशनल पार्क का क्यों बढ़ावा दिया है, किस मूल्य को बढ़ावा देता है। तो यह साफ करता है आंसर कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान नीचे दिए गए कुछ मूल्यों को बढ़ाता है। कहते हैं अगर पहली पॉइंट पे हम अगर देखें तो वो जो है हमारी वन संपदा के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है, कि हमारी जो वन संपदा है उसको पुनर्निर्माण को काफ़ी बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत में वन आवरण जो है सिर्फ 20% से अधिक है, यानी भारत में वन आवरण जो है 20% से अधिक है, जबकि परिस्थिति तंत्र को संतुलित करने के लिए लगभग 33% होना चाहिए। अब देखिए कितनी दुख की बात है यहाँ पर है कि हमारे जो है भारत में वन आवरण जो है सिर्फ 20% ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम संतुलित करने के लिए 33% की आवश्यकता है। अब कहते हैं 33% यानी जो यहाँ 13% कमी है वो कहाँ चली गई, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, लोग पेड़ पौधे जो है धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं।
और इसमें जो है जनरल सी बात है, इसे पर्यावरण जो है बिल्कुल ही असंतुलित हो रही है। अब 20% में इंसान का जिंदा रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं जितना बैलेंस होना चाहिए पेड़ पौधों में उतने इंसानों में भी होना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे में तो बैलेंस बिगड़ती चली जा रही है, तो इंसान जीवित कैसे रह सकता है। दूसरा पॉइंट साफ करता है कि वह जानवरों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो बताता है कि जानवरों की सुरक्षा को कैसे किया जाए। कई जो है विलुप्त प्रजाति के लिए आवश्यक भी है। यदि ये प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो परितंत्र जो है असंतुलित हो जाएगा, जिससे भविष्य में और अधिक समस्या पैदा होगी। जैसे मैंने आपको जो है प्रीव्यू क्वेश्चन में जो है गिद्ध का एग्जाम्पल दिया है कि कितना जो है बैलेंस बिगड़ गया है। आज जहाँ भी देखो जीव जंतु सर गल रहे होते हैं, तो ये कितना जो है नुकसानदायक है। तो ये समस्या जो है भविष्य में काफ़ी जो है गंभीर समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो यही हमें राष्ट्रीय उद्यान समझाने की कोशिश करता है कि इनकी हमारे पर्यावरण तंत्र में कितनी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं वे जड़ी बूटियां और पौधे के उपयोग को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देता है, यानी वे जड़ी बूटी और पौधे के उपयोग को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देता है। जहां राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए है। इन पर जो है पारंपरिक दवाइयों को बनाने के तरीके दुनिया को सामने नहीं खोए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाएं उन जो है दुर्प्रभावों से मुक्त होती है जो एंटीबॉडी दवाइयों के कारण होती है। अब देखिए कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान हमें ये संकेत देते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ जो है पेड़ पौधों उनका संरक्षण किया जाए, और राष्ट्रीय उद्यान जरूरी है कि आसपास क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यही बात जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो में संरक्षण भी किए गए हैं। पहाड़ी तंत्र को जो है पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण मूल्य है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना देगा। तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान ही एक कार्य में अग्रसर है, और राष्ट्रीय उद्यान जो है हर तरह के रूल रेगुलेशन बनाती है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको मैंने समझाने की कोशिश किया है बखूबी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करना नहीं भूलिए। जितना कमेंट कीजिएगा, जितना आप अच्छे और बुरे की बात बताइएगा, उतना जो है आपके लिए अच्छे से अच्छा होगा, ठीक है। और साथ में जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपको जो है इसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको त्रिपाण सेंटर प्राप्त न हो सके।